ना वो जो उससे क्लास 3 भी कहते हैं, उसको डी क्लास स्टेशन भी कहते हैं, फ्लैग स्टेशन भी कहते हैं, लेकिन वो इस पर्पज के लिए नहीं है जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर ट्रेन जो है उसको ब्राक सेक्शन को रिड्यूस नहीं करती, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इंक्रीज द टाइम बिटवीन टू ब्राक स्टेशन, क्योंकि जो डी क्लास स्टेशन है या फ्लैग स्टेशन है या डी के साइड में 3 इसके होते हैं, किस्में होती हैं। डी क्लास स्टेशन जहाँ पर सिग्नल के बगैर भी आप रुक सकते हैं, अगर वो साइडेंगे कोई काम करने उसको कहते हैं डी के साइडें। उस स्टेशन पर काम करने के लिए यू गेट द रूल्स फ्रॉम द पेरेंट स्टेशन। पेरेंट स्टेशन मीन स्टेशन विच इज कंट्रोलिंग द डी क्लास साइडिंग, वो साइडिंग होती है। अगर वो फ्लैग स्टेशन है तो वहाँ जस्ट टू फैसिलिटेट पैसेंजर आप बताते हैं, लेकिन ब्राक सेक्शन को रिड्यूस करने के लिए यू नीड टू बिल्ड द लूप लाइन्स एंड मेन लाइन्स so as to allow the crossing of the passenger of trains, unless and until you provide full station, otherwise वो जो डी क्लास स्टेशन है उसका स्वाइस के वो फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन गाड़ी के टाइम वहाँ बढ़ जाते हैं कम। आप समझिए ना, मतलब है ना कि आपने जो ब्राक सेक्शन को कम करना है, तो कम करने का मतलब ये है कि आप एक और स्टेशन को मंजर आम पर रहें और वो स्टेशन कोई ब्राक स्टेशन वाला काम करें जहाँ पर ट्रेनों की आमदरफ्त में आप उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर आप ना वहाँ ट्रेन को सिग्नल कंट्रोल करते हैं और ना आप ट्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो वो ब्राक स्टेशन नहीं है, वो फैसिलिटेशन के लिए एक साइडिंग लाइन है, उसको आप कोई भी नाम दो। क्लियर हो गया ना? अच्छा, तो जस्ट टू रिव्यू, जो एब्सोल्यूट ब्राक सेक्शन है, the section where you are just required to run the speed on second speed. एक होती है second speed, एक होती है per speed. Second speed mean the section between two stations, 2 points where you have fixed the speed lower than the permissible speed. For example, अगर आप घाट सेक्शन में, घाट सेक्शन जहाँ पर gradient है and where you are compelled to reduce the load of engine, the load of train, you are compelled to observe the rules governing safety siding, तो वहाँ आप अपने ट्रेन का जो स्पीड है उसका रिड्यूस करेंगे घाट सेक्शन में। तो घाट सेक्शन की अपने वो हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं। Some घाट सेक्शन they are much steeper. For example, if you run a road, again quoting Avelia, you want to run a train from Bandar to Avelia, here the variant is 150. You cannot attach load more than 850 ton. Between Lala Musa and Pindi, you can run a load comprising 1000 tons. Between Lala Musa and Karachi, you can run a load of 2500 to 3000 tons. Yeah, road आ गई, speed restriction आ गई. It depends upon the gradient, upon the power of the capacity of the power, and upon the length of the train. अच्छा, फिर हमने ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था अभी पिछले लेक्चर में कि आपने पॉइंट्स को सिक्योर करने और आपका जो ओरिजिनल काम है वो है हाउ टू सेट द रूट. And second, it is the first thing that is not important. The important thing is how to safeguard that set route from any intervention, from any quarter, from any side. Just to prevent intervention, you isolate the lines. Isolation means, for example, a person is suffering from some disease. He is put in isolation. Nobody can go near to him or her because of the fact that the disease is contagious. Similarly, when a line is isolated, it means that it has become unique one. No movement can be directed to that line. अब उस isolation के लिए obviously जो 7 दूसरी लाइनें, उन लाइनों को
ये अगर एक लाइन आ रही है एक स्टेशन पर, इसके साथ ये मेन लाइन है, एक लूप ये, आपने गाड़ी को इस फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, you want to have the train run through via this line. This is main line. These are two loop lines. The main line can accommodate 65 vehicles with a train, whereas this is first loop. This can accommodate 60, and this can accommodate 55 vehicles. So the loop capacity of this line, it will overwhelmingly determine the load of the entire section, because if you want to run a train which has 60 vehicles, and if for certain reasons you are compelled to receive or dispatch this 60 vehicle train from this loop, it means it can't come over here. Then this loop shall become disabled. When you are going to disable a loop, it means that you are going to decrease the section capacity. Now, what is section capacity? Loop capacity, section capacity, line capacity. These are all determined the number of trains within 24 hours running over a section between 2 points. And your entire effort being officers is how to increase the section of the line capacity. That is how far you are able to run as many trains as possible within 24 hours. Then your confidence or your foresight, it depends upon the fact how you are able to run freight trains. A freight train earns much more as compared to passenger train. So therefore, if you want to compensate for the capital you have invested in the network, in the infrastructure, for that purpose, you need to run as many trains as possible. Now, obviously, there are 1 line, 2 line, 3 line, but however, you are again compelled to run a single train at one time. So therefore, the more you are erecting signals, the more you are creating terminal facilities. What is terminal facility? Terminal facility means that how far you are able to have the passenger disembark from a train and then de-embark, and similarly how you are able to unload a vehicle at the station, then get it ready, take it to next train and send it off. So all these things, they are focused on your capacity, on your intelligence, on your knowledge. And two things: safety, economy. Safety, economy. Now, you go to next slide. Automatic block system, running line divided, consecutive. So in next step, ballast. The civil engineer, they must be knowing that you need to attend a track time and again 24 hours. The entire track operation, the entire system is overridden with the staff with vigilance. ट्रैक को देखेंगे की मैन, गैंग मैन, परमानेंट वे इंस्पेक्टर कहते हैं, इस तरह सिग्नल को सिग्नल इंजीनियर देखेगा। तो इसमें यह है कि आपने ट्रैक को अटेंड करने के लिए बैलेंस ट्रेन चलानी है। अब बैलेंस ट्रेन चलाने के लिए इट मीन दैट यू आर गोइंग टू मेक इंटरफियरेंस इन द रेल टाइम टेबल। सो इन दैट केस you will have to find spot between two trains. Now here we come to battery system. In Pakistan, battery system means that you are compartmentalizing trains in various shifts phases of train. For example, from Karachi, you run maximum passenger or express train early in the morning from 6 hours to 14 hours. After 14 hours, from 6 hours to 10 hours, from 10 hours to 8 p.m. to 20 hours, you have the path free for your freight trains. Thereafter, again, you will run passenger trains.
So for all this purpose, you need to attend the track. So when you run a ballast train or a material train, ballast train means that when you are going to supplement your track with the concrete. उसके लिए आपने यहाँ पर आइए होंगे या बरेस कहते हैं उसको रिक्वेरी होती हैं तो रिक्वेरी में निकाल कर उन्होंने बाकायदा ट्रैक को क्योंकि ये काम 24 आवर के if you are unable to fill in the blanks between the sleepers between the tracks and the fish grades it means that you are going to give the track bumps and speed up maintain नहीं कर सकते. अब बैलेस्ट ट्रेन के लिए आपने गाड़ी चलानी है मटेरियल ट्रेन means that you are supplying various tools and various fillings फिश प्लेट होगी बाकी चीज़ होगी जो आपने ट्रैक फिट करना होता है वो मटीरियल चाहिए. ट्रैक मशीन होती है ट्रैक मशीन जो मटीरियल जहाँ पर मैनुअल काम नहीं होता बल्कि मशीन से काम होता है और उसको ट्रैक को वो स्ट्रेंथन करते हैं. अच्छा तो इसके लिए ये होता है कि आपने बाकायदा करना होता है गाड़ी को चलाने के लिए आपने ब्लॉक लेना होता है. अगर आप ब्लॉक में भी लें तो उसमें जो सेकंड कंट्रोलर है या जो सेकंड मास्टर है उनको ये ना होना चाहिए कि कौन सा वक्त हमें मिल सकते हैं जिसके लिए हमने करना है ट्रेन को चलाने. फिर उस ट्रेन को चलाने के लिए वो वहाँ पर काम करते हैं और बात ये होते हैं कि आपने ट्रैक को रिपेयर करना होता है. अब ट्रैक को रिपेयर करने के लिए आपने टाइम लेना होता है तो उस टाइम के लिए यू आर इंट्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन स्पीड. इफ यू आर रनिंग ए ट्रेन फ्रॉम कराची टू हैदराबाद ऑन 110 km/h but if there is a maintenance work is on in the track in that case you will have to issue certain orders certain certificates whereby you are erecting you are reducing speed restriction कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैक मेंटेन हो रही है और यहाँ पर गाड़ी की स्पीड 5 km/h और 10 km/h होगी. इस टाइम टेबल में दिए हुए कि आप ट्रैक को मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम हार्ड डिवीजन में कितना टाइम दे सकते हैं इसको स्पीड रिस्ट्रिक्शन को. इनको ER कहते हैं. ER मीन इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस. अब जो ER हैं देयर आर टू काइंड्स. वन आर कॉल्ड परमानेंट एंड सेकंड कॉल्ड टेम्पररी. परमानेंट because of the very nature topography or geography of the section. फॉर एग्जाम्पल वो जो आपने कहा था कि स्टेशन पर गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है. टर्न आउट है आप हैदराबाद यार्ड में दाखिल होते हैं वहां पर सेटेलाइट कंट्रोल सिस्टम है ऑटोग्राफ सिस्टम है एंड द ट्रेन डज हैव द कैपेसिटी टू गो टू रन थ्रू ऑन मैक्सिमम स्पीड बट यू से because of the turnout, because of the sharp angle, the train has to negotiate while entering the yard. The speed should be restricted at 40 km/h, and this 40 km/h shall remain in place for all time to come, unless and until you realign the yard and you remove the turnout. Similarly, किस जगह पर आप गाड़ी चला रहे हैं or when you are leaving, when you are going through that section, there is some impediment, कोई some रुकावट आ रही है तो उससे you are unable to see the next part of it. वहाँ पर हमने restriction डाली. इससे का ब्रिज है जो ब्रिज जो है वो द टाइम वो कमजोर हो गए तो ये परमानेंट यहाँ पर है तो उसके लिए तो परमानेंट रिस्ट्रिक्शन के लिए आपको करना पड़ेगा. यू विल हैव टू ऑब्जर्व द स्पीड फॉर एवर अनलेस अनटिल दैट इज रिमूव्ड. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ जाएं तो टेक्सटाइल यार्ड नजदीक अगर आप दाखिल होते हैं सिंस टेक्सटाइल यार्ड इज बीइंग इंटरफियर्ड इन फ्रेंच फ्रॉम 3 डायरेक्शंस फ्रॉम पेशावर साइड फ्रॉम पिंडी साइड फ्रॉम वेरियन साइड. तो तीनों जब ट्रेनें आती हैं तो उसके वहाँ परमानेंट स्पीड सेक्शन लगी हुई कि आप जब भी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रॉस टेक्सला स्टेशन यू विल हैव टू ऑब्जर्व दिस सेक्शन. लेकिन अब जब टेम्परेचर बारिश हो गई है बारिश से जो सेक्शन है बिटवीन हरिपुर और नवेलिया ये अफेक्ट हो गए पानी चले गए और ट्रैक बंपी हो गई तो यू विल इंट्रोड्यूस टेम्परेरी सेक्शन. अब टेम्परेरी सेक्शन के लिए उसके लिए सेक्शन मास्टर ने एक एडवाइस देनी होती है. अगेन रूल रेगुलेशन गाड़ी में जाने
सेक्शन स्पीड पर, तो आपने जो 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 ड्राइवर है ये देंगे स्टेशन, जब स्टेशन को लीव करेगा तो उसके बाद when it is entering into Braque session, at that time it does not have the knowledge because a driver is only beholden to signals. तो उसके लिए जो स्टेशन मास्टर उसको एडवाइस जारी करेगा उससे कहते हैं ओके नहीं, ओपी भी कहते हैं काशन आर्डर। काशन आर्डर का मतलब ये है कि जो उस काशन आर्डर में ये लिखा है कि आप यहाँ जा रहे हैं, फलां जो किलोमीटर है उससे लेकर फलां किलोमीटर तक वहां पर काम हो रहा है, आपने वहां पर इसको ये स्पीड ऑब्जर्व करनी है। पहली होती है खुदा न खास इमरजेंसी होती है, द पीवे इंस्पेक्टर somebody else, they are unable to inform the station master or the second controller in advance. At that time they erect रेड सिग्नल। रेड उनको या तो डेटोनेटर लगाएंगे, डेटोनेटर लगाने के बाद अगर वो नहीं लगा तो जो गैंगमैन है वो 6 फीट बाई 2 फीट उसका एक कपड़ा लेकर वहां खड़े हो जाएंगे ताकि ड्राइवर को इन्फॉर्म कर सकें और डेटोनेटर भी अगर पॉसिबल हो तो लगा दें। तो ये सब चीजें बताती हैं कि ट्रैक में जो ट्रेन की फ्लो है उसका जो ये फैक्टर है कि ए ट्रेन कैन नॉट लीव इट्स कोर्स वट एवर द केस इज। It can slow down, it can stop dead, but it cannot leave or it cannot switch over to some other place. उसके लिए ये सब जो है वो प्रिकॉशन। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। जो परमानेंट ईयर है, चूंकि वो परमानेंट ईयर, हाँ वो उसका ये जो बुक होती है इसमें गिवन होता है। हाँ ये परमानेंट ईयर मैंने कहा मैं एडवाइस करूंगा आपको कि ये जो टाइम टेबल है इसको जरूर लें। अगर आपको डिफिकल्टी हो मैं किसी को दूंगा तो आप उससे जाकर दे दें। इसमें जो ये पहले पेज है ना, फ्लाई पेजेस, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये परमानेंट रिस्ट्रिक्शन कराची से लेकर पेशावर एंटायर नेटवर्क पर कहाँ कहाँ है, क्यों लगी है और इनका रीजन क्या लगाने की और किसके ऑर्डर पर लगाएगी, ये सारा लिखे हुए। टेम्पररी तो फिर वो सर वैसे परमानेंट ईयर बाकी मुल्कों में भी है या सिर्फ पाकिस्तान में है सर? देखिए बाकी मुल्क में भी है ये। पाकिस्तान रेलवे जो है इट वाज रिक्वेस्टिंग टू बिकम मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन रेलवे सिस्टम। उनका नाम है रेलवे का कोटिफ और ओटिफ, मतलब है कि बाय वर्च्यू ऑफ योर मेंबरशिप टू एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यू आर इन ए पोजीशन टू travel to those countries on train. You can send train, you can send cargo. तो वहां पर मैंने ट्रेवल किया। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बार्न से जिनेवा तक इसमें ट्रेन में। उनका जो गार्ड था एग्जैक्टली उसको यूं बोलती थी जो हमारे गार्ड की होती है, वाइट कपड़े से पहने हुए और सर को जो कैप वही लगाई। और उसने मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि रास्ते में एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज पर हमारी परमानेंट रिस्ट्रिक्शन है और जब तक इस ब्रिज को हम रीअलाइन नहीं करेंगे ये रहेगी। ये देखिए ना जरूरी है। अब मैंने आपसे पहले भी ये बताया था आपको कि अगर आप यहाँ अहमदाबाद जाएं इस मोटरवे पर, तो मोटरवे का अहमदाबाद तक आधा रास्ता जो है मानसरा तक ये है ब्रिजेस पर है। उसको स्ट्रेट करने के लिए तो आप एक हद तक ट्रेन का पास स्ट्रेट करने के लिए उसको खत्म करते हैं, लेकिन जहां मजदूरी होती है तो वहां तो करना पड़ता है। इस अगर लंबा टर्न लेना है आपने तो आप वहां पर निकालनी है। अच्छा जो काशिर आर्डर जो होते हैं, एक बात मैं ये बताऊं, आपने ऑपरेटिंग मैनुअल के जनरल रूल पढ़े आपने? हाँ जनाब। ऑपरेटिंग मैनुअल पढ़ा आपने? आप सो रहे हैं। जनरल रूल्स बुक और ऑपरेटिंग मैनुअल। जनरल रूल बुक जो है ना आप ये समझें कि इट इज द बाइबल ऑफ रेलवे ऑपरेशन। जितने भी बेसिक रूल हैं
आई डोंट नो आपने जो वार्डन वाले लोग हैं, यू आर लकी जी। 2-3 ऑफिस पढ़ाई थी बस सर। मैं अदरवाइज कह रहा हूँ, आपके पास टाइम होते हैं ना, एक तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप प्लीज स्टेशन पर जाकर देखें, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि ट्रेन में दूर न जाए आप, ये टेक्सटा से आपको गड़िया जाएंगी बसें, वहाँ ट्रेन में बैठ जाएंगे, जो ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस अवेरिया तक आए, आपको बसें वहाँ से जाएंगी। आप कुछ भी न करें, ये गौर करें कि ये टोटल जो जर्नी जो ट्रैक है, ये हार्डली जो है ये 30 से 40 किलोमीटर है। 1 घंटा क्यों लगता है, जबकि ट्रेन की स्पीड जो है वो टाइम टेबल में दी हुई है 65 किलोमीटर पर आवर। तो ये 65 किलोमीटर से अगर ये आए तो इसका तो टाइम जो है तो बहुत कम लगना चाहिए, लेकिन ये 2 घंटे लगा रही है। उसमें आपको ये आइडिया होगा कि ये 2 घंटे किस क्या कोई परमानेंट स्टेशन है, टेम्पररी या लगी हुई है, कहीं पर इसका जो सिग्नल का जो सिस्टम है वो गलत दिए हुए। ये आप मतलब है कि डोंट टेक इट एज सॉर्ट ऑफ बर्डन अपॉन यू, जस्ट कैजुअली, जैसे आप पिकनिक बनाने जाते हो तो आप सिर्फ देख लें उसको, तो लेट मी नो कि आपने क्या देखा। अगर कुछ नहीं देखा तो आई विल गिव यू फुल मार्क्स, कुछ नहीं देखा, अगर देखा तो फिर मैं फुल मार्क दूंगा। बट फॉर डिस्कशन से मैं देखता हूँ कि आपने जो कुछ देखे है, जो कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर किस तरह, तो आपको हर चीज़ का आइडिया बड़ा क्लियर हो जाएगा। देर आफ्टर वी कैन गो फॉरवर्ड। ये भी याद रखें, जो ट्रैक है, जो रेलवे, इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। योर ऑफिसर यू आर गोइंग टू bear very heavy responsibility in future जल्दी। उसमें एक बात भी याद रखें कि सबसे पहले आप जहाँ भी जाएं, यू मस्ट नो व्हाट डू यू पोजेस इन योर रीच, बीइंग ए इन बीइंग रिटिकल, आपके पास क्या है। आप यकीन करेंगे कि मैंने इंस्पेक्शन के दौरान ऐसे टूल मुझे मिले, ऐसे इक्विपमेंट मिले जिनके बारे में ये था कि ये यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं और ये हेडक्वार्टर से बगैर आप नहीं बना सकते, आप उसको ला सकते हैं। तो पहले ये देखें कि बीइंग इन ऑफिसर जो आपकी बीट है उसके अंदर जितनी भी लोग आपके माताहत हैं, ख्वाह वो वर्कशॉपें हैं, ख्वाह वो स्टोर्स हैं, ख्वाह वो स्टाफ है, तो उसके बारे में आप यकीन करेंगे कि आपको वो कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो आप रोज़ यातायात लिखते हैं इसको हेडक्वार्टर को जी कि फलां चीज़ हमारे पास सकती है, नंबर 1। और नंबर 2 बात ये है कि ये जो इसमें रेस्ट्रिक्शन दी हुई हैं, बाल रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो 1932 से लगी हुई हैं, इनको रिविजिट करें। रिविजिट करने से आई बिलीव 100% कि यू शेड बी इन पोजिशन टू रिमूव स्ट्रेट अवे एटलीस्ट 5 to 10%। ये सब मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं, तो इसको आपने, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा मैंने किया, तो इसको आप रिज्यूम कर लें। काशन आर्डर से आप ओपी की बात कर रहे थे, काशन आर्डर, ओपी, सिग्नल, फास्ट सिग्नल, दीज आर ऑल वार्निंग टू द रनिंग स्टाफ। एक ड्राइवर है, एक गार्ड है, उसके लिए वार्निंग है। ओपी किसे कहते हैं, आपने एक ट्रेन को रिसीव करना है एक स्टेशन पर, आपका सिग्नल नहीं, आपका यार्ड सारा भरा हुआ है, फर्स्ट आप कर रहे हैं इसको, फ्रेट ट्रेन ले रहे हैं, कोई भी ट्रेन ले रहे हैं, योर यार्ड इज कंजेस्टेड। कंजेस्टेड मीन के द नंबर ऑफ वैगन विच आर स्टेबल्ड, विच आर प्लेस्ड इन द यार्ड, विच आर बिल्डिंग इन द यार्ड, दे आर मोर देन इट्स अकोमोडेशन। हर यार्ड की एक कैपेसिटी होती है, एक्स्ट्रा यार्ड है, वेरिएंट यार्ड है, पिंडी, उसमें लिखा होता है जी कि इस यार्ड के अंदर इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है। होल्डिंग कैपेसिटी मीन कि आप इसमें जो लाइनें हैं अगर आप गिने और लाइनों पर अगर आप वो नंबर ऑफ वैगन को अकोमोडेट करें तो यू कैन अकोमोडेट मोर देन 800 वैगन्स इन यार्ड। फॉर एग्जांपल कुंजन यार्ड या लाहौर यार्ड या लाड़काना यार्ड। But how to work that capacity, how the number of wagons? To work the number of wagons, you need extra room. So therefore, if the lines in a yard, if they can hold 500 wagons, then we shall fix its capacity up to 350 wagons.
so that the remaining space should be available for Shandong operation. तो इसलिए अगर आपने एक ट्रेन लेनी है एक स्टेशन पर और आप जिस लाइन पर ले रहे हैं उस पर आगे ट्रेन पड़ी, जो आपका रूल है कि whenever you are going to receive a train, the line should be clear up to the advanced starter or 180 meter. Bridging the educated distance, but that educated distance is infringed by stable vehicles. Then that is called occupied line. For that you issue an advice. That is called OP. अब अगर वो occupied line है, you issue OP 374. OP 374 मतलब ये है कि इस OP का मतलब ये ड्राइवर समझ जाएगा कि जिस मैं लाइन पर जा रहा हूँ वहाँ पर लोड पड़े, मेरी जगह है, लेकिन मैंने डेड स्टॉप पर जाना है। अगर आपने एक गाड़ी को बहुत कंजेशन है, फ्रेट ट्रेन को, if you want to send it to the पैसेंजर यार्ड, तो यार्ड में बैठने के लिए आप एक ओपी इशू करेंगे कि भैया आपके लिए यहाँ फ्रेट ट्रेन जो है, यहाँ जगह कोई भी नहीं है, यू स्ट्रेट अवे गो टू द यार्ड और वहाँ जो आपने काम करना करें, तो उसके लिए यू इशू OP 212 अगर आप एक गाड़ी आ रही है OP stands for? जी OP stands for? ये बजट नहीं बदलेगा, आउट पास ये गूगल से लेते हैं, मैंने ट्राई की थी। ऑपरेटिंग पेपर सर। ऑपरेटिंग, थैंक यू सो मच, आई डिडंट नो अबाउट दैट। OP के दौरान अच्छा, तो आप एक गाड़ी आ रही है और आपका आउटर सिग्नल खराब है, वो उसको आप डाउन नहीं कर सकते, तो कौन सी OP इशू करेंगे इसके लिए? इसके लिए सर सिग्नल डाउन। हाँ, सिग्नल आपका डाउन नहीं हो रहा। 354 आई थिंक। OP 373 74 है, और अगर OP 374 है टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ब्लॉक लाइन। OP 373 ये आप तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन आप जो बुक्स हैं जनरल रूल और अपने म्यूजियम उनको पढ़ें। मुझसे सुनने के बाद आपके लिए पढ़ना समझना बहुत आसान रहेगा। अगर नेक्स्ट स्टेशन का सिग्नल खराब है, अच्छा, जब आप OP 373 इशू करेंगे तो उसके और भी साथ लाज़मात हैं। You will have to send your pilot, who is pilot, the person or the pointsman, who is just a dispatcher of the station master, and exchanges messages between the running staff and the station master. तो वो आएगा पायलट मास्टर, वो आप OP इशू करेंगे स्टेशन मास्टर पर, लिखोगे जी कि आप थ्रू द ड्राइवर ट्रेन 5 ऑफ अघारा एक्सप्रेस kindly pass the outer signal at dangerous position with the such speed, फिर जाकर उसको साइन करेगा। अगर नेक्स्ट स्टेशन का सिग्नल खराब है, उसने आपको मैसेज किया है, तो you will issue OP 371। और अगर वर्किंग के लिए आप एडवाइस इशू कर रहे हैं, ये तो स्टेशन पर हो गया ना, बट इफ यू वांट टू गिव एडवाइस टू ए गार्ड और ए ड्राइवर इन रूट, देन those are called caution order. Caution order means you may go in the block second, but you are hereby cautioned that you may come across with temporary or with track work, etc. और जहाँ पर ये तो वो सूरत हाल है when station master or a person they know already about any emergency or about the occupation or about the business for which they are issuing OP. But if something emergency has come up, again I am telling you that I am just going to give you the concept clearness, बाकी डिटेल आप देख लें, वहाँ में समझ में आया तो हम रेडी। तो उसके लिए आप इशू करेंगे काशन ऑर्डर, और अगर काशन ऑर्डर के टाइम ना हो, खुदा ना खास्ता एक ट्रेन है रास्ते में खराब हो गई है, कम्युनिकेशन भी फेल है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो डेटोनेटर लगाएंगे, ट्रेन के आगे पीछे वो भी लगाएंगे, हैंड सिग्नल से भी काम करेंगे, कोई कपड़ा वगैरह, तो डेटोनेटर दे विल बर्स्ट with a loud report and they will inform that the guard driver that something is especially right. ट्रेन रजिस्टर जी हाँ, मैं आपको थैंक यू वेरी मच। गार्ड होते हैं और ड्राइवर होते हैं, और ये ट्रेन रजिस्टर में मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराऊंगा कि प्लीज बी वेयर
that rules, regulation, they are the gist of the हर जगह इस्तेमाल होते हैं और इनके बगैर आप इतना नहीं कर सकते। ट्रेन रजिस्टर में जो कुछ भी स्टेशन मास्टर ट्रेन ऑपरेशन के बारे में हिदायत देता है, ओपी इशू करता है, काशन ऑर्डर देता है, फास्ट सिग्नल इशू करता है। अब जो फास्ट सिग्नल है वो हर एक के पास, क्योंकि वो इमरजेंसी भी काम आते हैं, जैसे जो फास्ट सिग्नल हैं वो 28 नंबर स्टेशन मास्टर के पास हों, 16 केबलमैन के पास हों, गार्ड के पास हों, ड्राइवर के पास हों, ताकि इमरजेंसी में जरूरत पड़े। तो ये जो ट्रेन रजिस्टर है इसमें हर चीज के अधिकार होते हैं। स्टेशन मास्टर की 3 शिफ्टें होती हैं 24 आवर में। हर स्टेशन मास्टर जब उससे चार्ज लेते हैं, कहते जी प्लीज शो मी द ट्रेन रजिस्टर। दैट रजिस्टर इट इंडिकेट्स every action, every measure that had been taken by the station master in his shift। कि मैंने कितनी ओपी इशू किए, काशन ऑर्डर कितनी इशू किए, ईआर कितनी लगी हुई है, ट्रेन कितनी रिसीव हुई है, ट्रेनों का लोड क्या था और डिस्पैच कितनी हुई है, डिटेंशन कितनी हुई है। ये सेकंड रजिस्टर आ गया। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक जनरल, उसे कहते हैं ST13, गार्ड ने ये भी याद रखें कि द कैप्टन ऑफ द ट्रेन इज गार्ड एंड ड्राइवर इज सिंपली कंसर्न्ड विद द इंजन एंड ट्रस्ट डिपेंडेंट अपॉन द सिग्नल कन्वेड बाय द गार्ड। उस गार्ड जनरल में जो गार्ड है वो रास्ते में जो कुछ भी होता है कि ट्रेन क्या पंक्चुअल थी, अगर पंक्चुअल नहीं थी तो किस जगह पर इसको रास्ते में डिले हुए और डिले की काज क्या थी, पंक्चुअलिटी क्या मुतासिर हुई है, और ड्राइवर ने क्या जो ट्रेन है उसको इस पर ट्रेन ड्राइवर चलाया है कि या रास्ते में इसने अनड्यूली गाड़ी को स्लो चलाया है, एक गाड़ी खड़ी की है। तो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग रेलवे स्टैटिस्टिक्स, रेलवे स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितने नंबर ऑफ गाड़ी लोड हुई, उनमें कार्गो क्या था, कितने पैसेंजर गाड़ी, उससे आप जो ट्रेन जर्नल है। और थर्ड होता है लोड टिकट। लोड टिकट इज जस्ट लाइक द ट्रेन जनरल ऑफ गार्ड, वो होता है ड्राइवर के पास। 3 आदमी के पास 3 आम किताबें होती हैं। ड्राइवर के पास लोड टिकट, गार्ड के पास ST13 ट्रेन जनरल और स्टेशन मास्टर के पास ट्रेन रजिस्टर। इन तीनों में स्टेशन, ब्लॉक सेक्शन और ट्रेन के बारे में फुल हिदायत दर्ज होती हैं, जिनको पढ़कर जो ऑफिसर होते हैं जाकर फैसला करते हैं। आप लोग जब जाते हैं तो यू गो टू द स्टेशन, तो वहीं चेक करते हैं उसको आप। जी हाँ, ये इस तरह बैलेंस हो गया ना। अब जो लाइन की इंक्वायरी ये शुरू में था, आप लेते थे नेक्स्ट स्टेशन से बाकायदा टेलीग्राफी से कि मैं फलां ट्रेन को भेज रहा हूँ, क्या लाइन क्लियर इसके लिए। वो जवाबन टेलीग्राफी दिया था कि जी लाइन क्लियर है। तो फिर ये कहता कि अगर क्लियर है तो मुझे बताओ कि तुम स्टेशन मास्टर बोल रहे हो या जो तुमने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, ये इन इंफॉर्मेशन को किसी मौके पर कौन तस्दीक करेगा। तो फिर वो अपना देते हैं प्राइवेट नंबर। प्राइवेट नंबर की एक खास कोड बुक होती है जो हर एक स्टेशन मास्टर के पास होती है। वो कहते हैं जी हाँ मैं 5 आपके लिए लाइन की दे रहा हूँ और आप ट्रेन चला सकते हैं और मेरा ये प्राइवेट नंबर आप अपने करें, इसको लिख लें। तो वो प्राइवेट नंबर वो उस किताब से लिखवा देते हैं, जो बाद में आप तस्दीक कर लेते हैं। अब वो उसका खत्म हो गया। अब ये आ गए मोबाइल टेलीफोन नहीं था, मोबाइल टेलीफोन आ गया, ब्रासफोन आ गए, स्टेशन टू सेकंड टेलीफोन है, कंसोल टेलीफोन है। कंसोल मीन कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो नस्ब होते हैं और उसके थ्रू स्टेशन मास्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। अब ये जो सीआई लगी होती है, VHF रेडियो, ये अभी इन्होंने जो ये सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, अब इन्होंने उस लाइन क्लियर को रिप्लेस कर दिया। यू गेट लाइन क्लियर बट
थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो आजकल हैं, और आप लोग सेकंड पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर पूरा गोल्डन सेकंड पर जाएंगे उस पर साथ जाएंगे तो आप पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इनके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट किस होते हैं और पहले क्या था तरीका क्या तरीके, ये आपको सेकंड पर ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में ये जैन अब ये समझ लें कि बेसिकली इट इज ए सुपीरियर फॉर्म, a brief and quick, swift exchange of signals by means of electricity, electric current and magnetic current. तो वो पुराना सिस्टम था जिसमें आप बाकायदा वो अर्ली देते थे और बाकायदा टिकट देते थे, वो खत्म हो गया। अच्छा, ऑफिस भी आ गई। जो हमारे लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं, डू यू नो व्हाट इज लेवल क्रॉसिंग गेट? इसको लेवल क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? के साथ जी, रोड के साथ भी क्रॉसिंग वो होते हैं। अब आपने ये नोट किया होगा कि आजकल जो लेवल क्रॉसिंग गेट है, इन पर जो द इंसिडेंस ऑफ डिरेलमेंट एक्सीडेंट हैव इंक्रीज्ड। हमारे पढ़ते होंगे आपके फलां जगह फलां वैगन जो है वो टकरा दी गाड़ी के साथ, उसका बड़ा मुश्किल है क्योंकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो आप कहते हैं पी वे परमानेंट वे जो ट्रैक होती है, ट्रैक इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान रेलवे, और इस पर जो रोड व्हीकल आते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे कम एंड क्रॉस द पी वे विद द परमिशन ऑफ पाकिस्तान रेलवे। इसलिए इट इज द sweeper of Pakistan Railways whether they demand from the provincial government to build a level crossing gate along with gate leaves, to post a gateman, or to further enhance its security by erecting signals. Level crossing gate बहुत बिजी होते हैं। बतौर COPS मैंने देखा कि हमें जितना हमारी होती थी डिटेंशन, क्योंकि डेली पूरी सिस्टम की ट्रेनें चेक करता था, उसमें रिपोर्टें आती, सबसे पहला जो हमारी पंक्चुअलिटी को डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर था, सबसे पहला द टॉप पोस्ट, इट वॉज इंजन फेलियर्स। इंजन फेलियर इज कंसिडर्ड एज एक्सीडेंट। इसका आप एक्सीडेंट की ज़बान में पढ़ेंगे, इसका एक नंबर दी हुई थी कि A2 A2 41 एक्सीडेंट। इस पर ये होता कि इंजन फेल हो गया, गाड़ी खड़ी होगी, आप उस नेक्स्ट इंजन भेजना, उसको अटैच करना, उसको स्टेशन पर लाना, एक तो वो बड़ा होगा। सेकंड होता सिग्नल फेलियर। अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो सिग्नल पर आप खड़ी जाती, सिग्नल की आर्म प्रॉपर डाउन नहीं है, सिग्नल की आर्म इस तरह अगर उसको प्रॉपर डाउन होना चाहिए 45 एंगल पर, अगर वो 45 और 90 के एंगल के दरमियान है, it means that it is confusing the driver whether to pass it or not. So therefore, since security is the topmost concern, therefore he stops the train, gives a message or blows signal. अब अगेन वो सिग्नल के साथ जाएगा, वो विसिल बजाएगा, विसिल बजाएगा। विसिल भी होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग। देखिए ना, मैं जो बता रहा हूँ कि सिग्नल वो भी शॉर्ट लॉन्ग हूट एंड शॉर्ट लॉन्ग हूट्स विल बी रिप्लाइड बाय द गार्ड। द गार्ड, क्योंकि वो गार्ड किधर से आने हैं, वो हूट से उनका गार्ड आएगा, क्या हो गया जी, सिग्नल जो है वो डाउन नहीं है। तो फर्स्ट जो थे, द फर्स्ट क्रिमिनल टू डिटेन और टू डिस्टर्ब द पंक्चुअलिटी, इट वाज इंजन फेलियर्स। द सेकंड वन सिग्नल फेलियर्स। और मेरी जो चीफ होता सिग्नल इंजीनियर, उससे मेरी ये कहता, अगर तुम सिग्नल को ठीक कर लो तो मुझे डबल ऑफ ट्रैक की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैक डबल करने पर जितने पैसे लगते हैं बहुत बड़ा शक्कर है, क्योंकि मुझे सी फिगर याद है, आपको याद हो पढ़ो कि 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने पर गालिबन मोर देन लगते हैं 100 मिलियन। तो मैंने कहा, मैं कहता इसको ना तुम सिग्नल ठीक करो, तो सिग्नल ठीक करने से डबल ट्रैक के मुताबिक हम गाड़ी को एक्सचेंज कर सकते हैं। और थर्ड क्रिमिनल होता, थर्ड सिग्नल, इट वाज गेट।
गेट खुले होते, गेट को बंद करते करते पीछे से जोर होता गाड़ियों का। अब जहां पर पहले एक गाड़ी चल रही थी, रोड व्हीकल, अब वहां 100 चल रहे हैं। तो these three were the outstanding culprits which were affecting the popularity of train. तो अब अक्सर का अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रेलवे वाले वो ट्राई करेंगे, तो कर रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर आप गेट मांगे, कि वो गेट देना हमारा काम नहीं है, गेट काम जहाँ गेट मांग रहे हैं तो यहाँ आप गेट फुल बनाएं और उसको इंटरलॉक करें सिग्नल के साथ। जब तक गेट बंद नहीं होगा सिग्नल डाउन नहीं होगा, और सिग्नल डाउन तब होगा जब गेट बंद होगा। अच्छा, एमरजेंसी फ्लैग 180 मीटर पढ़ लिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को, ट्रैक को, जिस शावर आप जाएं या लाहौर जाएं जहाँ से ट्रैक हमारी जा रही है, तो वहाँ हमने जहाँ फिजिकल प्रोटेक्ट किए हुए स्नैक डेड एंड आप पढ़ चुके हैं कि स्नैक डेड एंड जो है वो आप लाइन को आइसोलेट करते हैं, उसके एंड पर राउट देते हैं, वो भी आपको सेकंड दिखा देंगे। दो बफर होते हैं, उनके सामने एक लकड़ी का बड़ा वो एक बीम लगा होता है। अगर कोई ट्रेन जो है, अगर किसी लाइन को आइसोलेट करना हो तो उस लाइन के रुख को मोड़ देते हैं ताकि गाड़ी वापस चली जाए। तो ये स्कॉच ब्लॉक बता रहा हूँ Sandham, it is all to isolate the line and to protect the running train. ये मेलने जा रही, यहाँ ट्रेन आ रही है, आप इसको रास्ता इधर बना हुआ है क्रॉस ओवर, ये क्रॉस ओवर है, यहाँ से एक और लाइन है, इसको ये क्रॉस ओवर बना हुआ है। जैसे कि ये लाइन यार्ड में जा रही है तो यार्ड से ये आ गया ट्रैफिक, शटल यार्ड आ गया। अब इस लाइन को पर जब आप ट्रेन ले रहे हैं, आपने सिग्नल डाउन कर दिए, रूट सेट कर दिए, दैट इज ऑल, वो सारा हो गया। लेकिन अब आपने इस लाइन को, अगर कोई व्हीकल लाइन नंबर ए पर है या बी पर है, इससे आप किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? ये व्हीकल यहाँ से या इधर से एस्केप होकर इधर आ सकते हैं, यहाँ से व्हीकल एस्केप आ सकते हैं, यहाँ से व्हीकल आ सकते हैं। जितनी भी ये क्रॉस ओवर बने हुए हैं टू मूव द ट्रेन फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया, अब आपने इनसे बचाना है इस लाइन को। अच्छा, अब इसके लिए आपने या तो आप इस लाइन को सीधे ले जाएं आगे, इस जगह पर आपने सैंड का बहुत बड़ा एक ढेर बनाए हुए, और खुदा न ख्वास्ता अगर यहाँ से कोई गाड़ी अगर इस लाइन पर हुई तो बजाय इस तरफ आने के या यहाँ से ये इधर आ जाएगी। और जब आप इस गाड़ी को लाइन के लिए दे रहे हैं तो फेसिंग पॉइंट सेट करने से पहले इसको जो रूट होगा इस सेकंड का, इसका रूट इस तरफ होगा ताकि, और सिग्नल डाउन करने से पहले, ताकि सिग्नल डाउन करने से पहले अगर ट्रेन वहाँ से निकल आई है और सिग्नल को ब्रीच कर लिए तो बजाय मेन लाइन पर जाकर आगे ब्लॉक सेक्शन में जाने के ये इधर आकर सैंडहम पहुंच जाए। तो सैंडहम के दो फायदे हैं लाइन का आइसोलेट करने के, यहाँ इस लाइन से कोई व्हीकल एस्केप ओवर यहाँ जाए, और बिफोर सेटिंग रूट, बिफोर लोअरिंग सिग्नल, इफ ट्रेन हैज नॉट स्टॉप्ड एट आउटर, it has rushed down to the station, then instead of going all the way down to the block section, it should go to Sandham. इसे कहते हैं आइसोलेशन, आपने इसको आइसोलेट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास इतना नहीं है सरमाया कि आप हर जगह Sandham बनाएं, तो फिर आप आते हैं ये जो दिए हुए हैज डिजाइन हो गया, स्विच हो गया, और स्प्रेड भी यहाँ पर होंगे। ये जो ब्लॉक्स हैं आप सेकंड पर देख लेंगे, ये ट्रैक पर रख देते हैं, ट्रैक पर रख कर उनको क्लेम कर देते हैं कि अगर कोई व्हीकल एस्केप होकर आए तो इनसे टकरा कर वो डिलेड हो जाए, लेकिन मेन लाइन को इंसल्ट न करे। आपको समझ आ गई ना? ये सारे ये वो टूल्स हैं जो सेफ्टी के लिए हैं।
जो स्टेशन पर होते हैं, और उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आई वाज कमिंग फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी इन रेलगाड़। तो जब ये पहुंची मंदरा स्टेशन के पास पहुंची, अब इसने मंदरा में स्टॉप करना था, और स्टॉप करने के बाद गाड़ी ने आगे निकलना था। स्टॉप करने के बाद गाड़ी आगे नहीं की, कुछ देर बाद गाड़ी ने पीछे मूव करना शुरू कर दिया। मेरे पास कंडक्टर गार्ड आया, कहते गाड़ी पीछे जा रही है। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, कठे जगह बैठे। तो उसने इमीडिएटली बाहर अपना जो सिग्नल है, गार्ड के पास इक्विपमेंट होते हैं जिसमें रेड सिग्नल होते हैं, उसने बाहर लाया। तो उस स्टेशन मास्टर को पहले एलर्म कहता है गाड़ी एस्केप हो रही है। अब उस स्टेशन मास्टर ने इमीडिएटली जो रियर स्टेशन था उसने इन्फॉर्म कर दिया भारी नाम उसका कि गाड़ी एस्केप हो गई। तो उसने 5 मिनट में the train had to reach their station within 5 minutes, and with the passage of time it was accelerating and gaining momentum because of the downgrade. But fortunately when we reached Delhi, the direction of our train it had been switched over to Sena, और गाड़ी वहां जाकर से टकराई और 3-4 उसकी ड्रेन हो गई, इंक्लूडिंग द वन आई वाज सिटिंग इन। लेकिन चूंकि वो उसमें की थी सेंडाम में की थी, गाड़ी वहां फंस गई, लेकिन बंद सारे बच गए। तो ये होता है कि इन केस कोई इस किस्म का वाकया इमरजेंसी है तो उसको मीट करने के लिए। अच्छा, शंटन यार्ड आपने गाड़ी में फार्म करना है, उसके लिए जो यार्ड है वो डिवीजन में यार्ड नॉमिनेटेड है। मसलन आप पिनर डिवीजन की बात करें तो पिनर डिवीजन में आप ट्रेनों को फार्म कर सकते हैं पिंडी में, उसके बाद आगे उनको आप फार्म कर सकते हैं डाला मूसा में, उसके बाद आगे फार्म करते हैं सरगोदा में। दीज आर बिग स्टेशन एंड बिग यार्ड्स। अब हर यार्ड की एक ज्योमेट्री होती है, उस यार्ड के अंदर आप ट्रेनों को फार्म करते हैं, और उस फार्मेशन में आपने जो ट्रेनें हैं उनके लिए डिपार्चर यार्ड, रिसेप्शन यार्ड, हम्प यार्ड, शंटिंग के लिए आपने उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की लाइनें बनाई होती हैं, जिसमें फार्मेशन के बाद आप ट्रेन भेजते हैं। अब यार्ड में फार्मेशन के भी तरीके होते हैं। फर्स्ट की आपने एक बुश ट्रेन जो है वो भेजनी है, पेशावर से आपने भेजनी है पिंडी भेजनी है। आप पेशावर से पिंडी या अवेरिया से आपने भेजनी है, उसमें टैक्सी भेजनी है। तो उसके अंदर जो लोडेड व्हीकल है उसमें बांडेर के पहले आए, उसके बाद हरिपुर के आए, उसके बाद आए टेक्सला के, ताकि रास्ते में शंटन करते हुए डिफिकल्टी न हो। अगर आपने एक जो फर्स्ट जो बोगी है या व्हीकल है उसको आपने कर दिए बांडेर के लिए, उसमें आपने मार्केट कर दिए इंजन के पीछे, और जो उससे नेक्स्ट है वो कर दिए इसके लिए बांडेर के लिए, तो ये जो मिक्सअप है, ये मिक्सअप जो है वो शंटिंग मीन टू ब्रेक द ट्रेन टू रीफार्म इट। तो उस फार्मेशन में फिर आपका टाइम बहुत लगेगा, और अगेन ये हो जाएगा हमारा जो पंक्चुअलिटी है वो डिस्टर्ब होगी या ट्रेन का टाइम डिस्टर्ब होगा। इसलिए आई होप कि वन डे रिसेंटली आजकल में आपके साथ प्रोग्राम बनाकर आपको यार्ड भी दिखाना है। ये चीज़ें देखने के बाद आपके जहन में आइडिया आ जाएगा कि एक शंटिंग यार्ड में डिपार्चर यार्ड कौन से होते हैं, रिसेप्शन कौन से होते हैं, और ट्रेन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। इंशाअल्लाह हम पिंडी या टेक्स्ट हम उसको देखेंगे। सर, शंटिंग करते वक्त जो कोच हमने डिटैच करनी होती है वो स्टार्ट में लगाते हैं या एंड में लगाते हैं? ना, वो कोच जो है ना जो आप डिटैच करनी है वो सिंपल उसके लिए एक आइडिया थी कि आपने उसको उस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लगाना है जिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में स्टेशन है। मसलन आप जो कोच है, ऑब्वियसली कोच को जिन्हें पकड़ना है, ये शंटिंग में तो आप जिस तरह लगाएं, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि जिस लोड में जहाँ पे लगानी है वो लोड को आपने बार बार ब्रेक न करें। फर्ज किया एक कोच है जिसको हमने फंसा दिया दरमियान में, जबकि उसने सबसे आखिर में होकर पहले स्टेशन पर रुकना, तो दरमियान में फंसने ये होगा तो फर्ज किया आप टेक्सला पहुंचे, जो जिस कोच ने दरमियान में वो कोच पिंडी की है, जबकि पिंडी की कोच जो है ये शुड हैव बीन इन द रियर,
इसके लिए बाकायदा उसका फॉर्मेशन है लोड की, कि लोड फॉर्मेशन में आप जब शंटिंग करते हैं तो कोशिश करें कि आप लोड को स्टेशनों की प्रायोरिटी के मुताबिक आप शंट करें और उस तरह लगाएं ताकि जिस जगह आपने उसको काटने गाड़ियों को तो आपको उसी तरतीब में काट कर आगे निकल जाएं, कोई गाड़ी लगानी है। इस तरह अगर आपने पैसेंजर गाड़ी जानी है उसको आपने पार्सल लोड करना है, तो पार्सल को लोड करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने उस पार्सल को स्टेशनों की तरतीब के मुताबिक लोड करना है ताकि रास्ते में गाड़ी रुकी है तो जो पहला स्टेशन आए उसका पार्सल टॉप पर हो, सेकंड के नीचे हो। अगर आप वहां पार्सल को ब्रेक पॉइंट में ढूंढते रहेंगे तो फिर ये होगा गाड़ी को आने टेंशन होगी। तो इसमें एक तरतीब बहुत जरूरी है जिसके लिए जो स्टेशन की गोडाउन है उसमें कार्गो भी तरतीब रखा होता है और उसकी लोडिंग अगर आपने करनी है रेगुलर में करनी है तो उसमें आपने उस तरतीब के ऊपर मद्देनजर रखना होता है कि जो पहला स्टेशन आए उसका लोड पहले आए, जो बाद में उसका आगे आए। और जो आप बात कर रहे हैं कि वो कोच पकड़नी है उस तो शंटिंग में तो कोई ऐसी इशू नहीं होता, आप जिस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन इशू है। अब फर्ज की आपने शंट करना है तो शंट करते हुए आपके इंजन के साथ आप 100 गाड़ी खींच रहे हैं, क्या यार्ड में तो कोई नहीं होता, आप पर नहीं है पाबंदी नहीं है कि आप यहाँ पर रखना लोड लगाने, वो तो आप जहाँ मर्जी लोड लगाएं, आपने स्पीड ही वहां रखनी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो आप कहीं भी रोक सकते हैं। उसमें फिर यार्ड के अंदर हम बने होते हैं, जगह ऊपर होती है, आप हम पर जाकर आप उसको लोड को छोड़ देते हैं और उस हम के साथ एक शंट नेक होती है। वो नेक मसलन आपने यहाँ से शंट किया, यहाँ से आप इंजन के साथ ये गाड़ी है, चले तो जितनी गाड़ी भी हम पर आएंगे तो उस नेक के आगे 5-10-12 लाइनें इधर उधर होंगी। वो जब आप छोड़ दें तो गुरुमुरेशन पुल पर जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग लाइनों पर चली जाएंगी और बाद में आप इनको फाटक कर लेंगे। इसका जो असल बल्कि नुकता ये है कि आपकी शंटिंग में कोशिश करें कि आपको जो कार्गो है, जो आपका लोड है, वो आपको मिले एक स्टेशन पर। हमें अगर एक ट्रेन मिल रही है जिसमें हमें 50 गाड़ी ऑफर हो रही है, उसमें एक गाड़ी को हमने अनलोड करना है या काटना है पिंडी स्टेशन पर अगली लोड है, 2 गाड़ियां हमने जेलम में काटनी है, 4 गाड़ियां हमने लालमूसा में काटनी है और 10 गाड़ी लाहौर में। उससे बेहतर ये है कि 50 गाड़ी न मिले, हमें 10 ही गाड़ी मिल जाए जो लोड मिल जाए। एक जगह से उठाया वहां लगे थे, इसे कहते हैं ब्लॉक लोड। द मोर यू हैव ब्लॉक लोड्स द लेस यू आर कंज्यूमिंग योर टाइम। सो ब्लॉक लोड आर utmost necessary। इसमें 2 चीजें हैं, आपकी जो अर्निंग फिगर है ट्रेन के अंदर, वो यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अ ट्रेन, द रेवेन्यू इज जनरेट नॉट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स और द नंबर ऑफ टन्स, बट किस पर, ऑन पैसेंजर किलोमीटर, ऑन टन किलोमीटर। What is the difference? Passenger kilometer mean that how many passenger kilometer, how many passengers are traveling, how many kilometers. For example, if a throng of passengers of 50 persons, if they have traveled for just 1 kilometer, तो ये आ गए इनके 50 किलोमीटर। But if a passenger has traveled 50 miles 50 किलोमीटर तो वो भी 50 हो गए passenger किलोमीटर हो गए, लेकिन हमें उससे फायदा हो गया। तो इसलिए ट्रेन के अंदर जितने लंबे पैसेंजर किलोमीटर होंगे, जितने लंबे टन किलोमीटर होंगे, इतना ही आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। तो टन किलोमीटर को अर्न करने के लिए आपको ब्लॉक लोड चाहिए। मुझे अगर ऑफर हो रही है चाइनीज इक्विपमेंट की यहाँ से पहुंचाने की कराची तक, तो मैं अपनी ट्रेन को शॉर्ट लोड से भी चला दूंगा, लेकिन मुझे ब्लॉक लोड मिल जाएगा। अगरचे शॉर्ट लोड से चलाना भी ये भी गलत बात है, इसलिए कि अगर आपके इंजन की हार्लिंग कैपेसिटी वो अगर 50 गाड़ियों की है और आप उस चला रहे हैं उससे 10 गाड़ियाँ, तो ये आप फ्यूल को ज़ाया कर रहे हैं।
लेकिन अगर ब्लॉक लोड मिल जाए तो ब्लॉक लोड में आने के लिए वो आप इसको करते हैं, प्रेफर करते हैं। इस तरह लॉन्ग जर्नी पैसेंजर मिले, लॉन्ग जर्नी पैसेंजर आर मच मोर बेटर ऑप्शन देन मोर नंबर ऑफ पैसेंजर बट विद शॉर्ट डेस्टिनेशंस। सेफ्टी सेटिंग आपने पढ़ लिया। फाउलिंग मार्क, फाउलिंग मार्क मीन कि जब दो लाइनों पर आपने गाड़ी रखी हुई है, उस गाड़ी का फ्रंट है या उसका रियर है, उन दोनों का दिमाग इतना फास्ट हो कि व्हेन दे आर मूविंग दे आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर, नॉट स्क्रैचिंग, नॉट शॉर्ट ऑफ बाईपासिंग। और इसी में एक एलिमेंट है ओवर साइज डायमेंशन, ओडीसी कंसाइनमेंट। आप जो आपका क्लियरेंस है, मूविंग डायमेंशन मीन के जो आप गाड़ी मूव करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उसमें और रास्ते में जो ब्रिज आते हैं, रास्ते में टनल आती हैं, रास्ते में मतलब स्टेशन आते हैं, तो आपके जो लोडेड स्टॉक है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि रास्ते में उसको करे किसी साथ टकरा जाए, तो उसके लिए भी आपने लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। इससे आप मुतफिक हैं? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह ये जॉइंटली रन होते हैं? ट्रेन्स आर रन जॉइंटली बाय द ड्राइवर, गार्ड, एसएम, सेक्शन कंट्रोलर। सर ये पीछे वाली साइड करिए जी, पीछे वाली साइड करिए। स्कॉच ब्लॉक और हेड रिले। हाँ मैंने बताया ना कि स्कॉच ब्लॉक होता है लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको ट्रैक की जो टेबल है उसके साथ तो क्लास अटैच कर देते हैं। और ये उस स्थिति में होते हैं जब आपके पास हो इतना बड़ा स्टेशन न हो कि जिस पर आप स्टैंड हम बनाकर लाइन को एक्सीलरेट करें, तो वो ट्रैक वही होती है। लेकिन अगर कोई व्हीकल एस्केप हो गया या इंफ्रिंज हुआ, तो वो बजाय गाड़ी आगे जाने के वो जो ढेर हो जाएगी, उसका पीए जो है वो नीचे उतर जाएगा। अगली गाड़ी को जिसने जाना है ब्लॉक सेक्शन में, उसमें रफ्तार नहीं करेगी। इस तरह हैज डिलेर है, हैज डिलेर भी एक वो इक्विपमेंट है जिसको ट्रैक के साथ लगा देते हैं, तो वो भी व्हील को स्किड कर लेते हैं, आगे नहीं देता, ब्रेड हो जाता है। ये वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन को हम इस्तेमाल करते हैं उस जगह जहाँ पर हमारे पास लाइन को आइसोलेट करने के लिए स्नैग डेड एंड नो, स्नैग के मानी रुकावट डेड एंड नो, और प्लस हमारे पास आइसोलेट करने के लिए स्टैंड हम नो, या हमने ट्रैक पार्टनर बनाने हो तो आपने फिर जो टूल रखे हैं स्टेशन पर वो उठाकर वहाँ ट्रैक पर फिट कर लेंगे, उसको रोक देते हैं। He has there the sort of equipment which has steered the vehicle instead of allowing it to jump over it, वही कर देते हैं। ठीक है, ये सब लाइन को एक्सीलेट करेंगे। डैमेज नहीं करते जी, व्हीकल्स की टायर व्हील्स वगैरह को? व्हीकल के ना 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 डैमेज करते हैं। मैंने कहा है ना कि क्रिकेट के में जब आप खेलते हैं तो उसमें ये होता है कि रन बनाने के लिए अगर आप पहुंचे उस पर अपने वापस जगह पर आए और फिर उसके दूसरा जब आउट कर रहा है, तो आप क्या करते हैं अल्टीमेटली 10,000 यू जंप और बिल्कुल हेड लगा देता है। वही पूरा नहीं होती कि मेरे सर लगी काम, लेकिन मैंने वापस बैट को जाना है ताकि वो आउट न हो जाओ। तो ये वो सूरत हाल है जिस सूरत हाल में यदि 10,000 आप हमारे गा रखे हैं कि खुदा न खासा अगर ये लाइन इंफ्रिंज हो तो बजाय इंफ्रिंज होने के, क्योंकि जो गाड़ी आपके स्टेशन से रन थ्रू हुई है आप भी इसकी उसने आगे जाना है, बड़ा सकते में जाना है, तो बजाय वो आदमी से भरी हुई या लिमिट है हो, तो ये गाड़ी जान दे देते हैं। ये 10,000 है उसको डिलीट करने के लिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सेकंड पर हम देखेंगे इंशाल्लाह। एसएम किंग पेन। हाँ, स्टेशन मास्टर जो है वो किंग पेन है। तमाम जितनी भी आपकी एक्टिविटी है एज एन ऑफिसर, व्हेन यू गो इनटू अ स्टेशन and you want, especially when you want to know the efficiency of the working of your subordinates, then the place whereby you are in a position to test them or to check the performance, that is
स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का जो ऑफिस होता है उसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं तमाम इसका परफॉर्मेंस का। मसलन सिग्नल फेलियर रजिस्टर, इट्स प्रेस ऑन द स्टेशन रिकॉर्ड, और आप बतौर सिविल इंजीनियर वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर आप चेक करेंगे कि ये जो सिग्नल फेलियर हैं कितने हुए हैं। फिर आप बनाएंगे अपने सबऑर्डिनेट को कि भाई ये सिग्नल फेलियर क्यों हो रहा है, आपने क्या काम किया। ER register, being alien, you ask him, just show me the ER register. उस ER रजिस्टर में ये लिखा होता है कि कितनी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगी हैं, कब लगी हैं, कब रिमूव हुई हैं, और इन रिस्ट्रिक्शन से ट्रेन के कितने आवर हुए हैं, ज़ाया हुए हैं। तो देन यू कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर टीवी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स कि आपने ये ER रिव्यू क्यों नहीं किया, अगर किए तो इसमें फला मिस्टेक क्यों नहीं उसके। इस तरह वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं एक्सीडेंट का। उस स्टेशन के इर्द गिर्द ब्लॉक सेक्शन में कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ है, डिरेलमेंट हो गई, उसके पूरा रिकॉर्ड होते हैं कि एक्सीडेंट कब हुआ, इसकी रीजन क्या थी, और इंक्वायरी के बाद कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हुए हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंजीनियरिंग कैमरे की है, ट्रैफिक की है, सिग्नल की है, अगर है तो इस खिलाफ क्या एक्शन दी है। तो इसलिए स्टेशन मास्टर सॉर्ट ऑफ मिरर, तो उसके पास आप जाकर जो भी अफसर हो, वो ट्रैफिक ब्रांच से, इंजीनियरिंग ब्रांच से, अगर वो अकाउंट्स ब्रांच से, तो तमाम जितनी मिलिट्री होती है उसके पास होते हैं, तो वो आप बताएंगे। इसलिए स्टेशन मास्टर किंग पेन है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं रेलवे की वर्क। फायर फाइटिंग स्टेशन पर होते हैं, खुदा खास्ता एक वहाँ पर लैंप रूम भी होता है सिग्नल को जलाने के लिए, वहाँ बत्तियाँ होती हैं, आयल पड़ा होता है, वो आप सकते हैं। सेक्रेटरी आप देख लेते हैं, स्प्रेज हो गए, स्टार्ट करा हेल्थ डिजाइन स्प्रेज को चेक कर लेते हैं। आगे फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं, खुदा खास्ता कोई मुसाफिर बीमार हो गया या कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया, तो उसके लिए इमीडिएट फर्स्ट एड के लिए इनके पास वहाँ पर होते हैं। स्टेशन वर्किंग रूम, अब तमाम जो स्टेशन हैं वो एक खास प्लान बता करते हैं। उस स्टेशन वर्क रूल में एक जो स्टेशन का तमाम लेआउट यार्ड का वहाँ पर दिए होते हैं। आप उस लेआउट के थ्रू स्पेशली जो इंजीनियर हैं वो समझते हैं कि ये लेआउट जो है इसका सिग्नल कहाँ दिए हुए हैं, ट्रैक यहाँ पर ग्रेड क्या है, बेस की पोजीशन क्या है, लाइन किस तरह काम कर रहे हैं। और उसमें ये भी दिए होते हैं जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पर वेबरेज होते हैं। वेबरेज का मतलब ये है कि आपने अगर एक गाड़ी यहाँ से लोड की है, आप यहाँ से अगर भेज रहे हैं, गन्ने भेज रहे हैं, गाड़ी से गन्ना मार रही है, आप गन्ना को आपने लोड करना है वैगन में, कितना लोड कर रहे हैं, एक वैगन में टेयर होता है, टेयर समझते हैं ना, टेयर मीन के खाली वैगन को लोड करते हैं, 12 टन होता है। अब उस 12 टन के टेयर की वजह में आप 24 टन तक अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन अक्सर बात ये होते हैं कि लोग कम किराए की लागत में ओवर लोडिंग कर लेते हैं। उसके लिए बाकायदा स्टेशन मास्टर ये एडवाइस करते हैं कि अगले जो यार्ड है उसमें एक को वेबरेज दिए हुए, वेबरेज भी 2 लाइनें होती हैं जिन नीचे पेमेंट का होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, हम रोज को देकर आगे जाए। इसका अच्छा, इसमें मैंने एक लिखा है सेकंड कंट्रोलर। सेकंड कंट्रोलर के बारे में आपको आइडिया है, ये कौन होता है? आप जब ट्रेन चलाते हैं तो ड्राइवर हो गया, गार्ड, ड्राइवर और गार्ड ने रास्ते में ट्रेन को देखना है, स्टेशन पर भी, और स्टेशन मास्टर ने इनको सी ऑफ करना है या रिसीव करना है स्टेशन पर से। सेकंड कंट्रोलर जो होता है वो बैठा होता है डिवीजन हेडक्वार्टर ऑफिस, डिवीजन ऑफिस में। हर डिवीजन जो है उसके अंदर एक कंट्रोल ऑफिस होता है, वो एक तरह का नर्वस सिस्टम होता है, दिमाग होता है डिवीजन का। एक जो सेकंड कंट्रोलर होता है उसको ये पता होता है कि हमारे डिवीजन के अंदर कितनी गाड़ियां आ जा रही हैं, तमाम गाड़ियों के बारे में होता है, और वही बताता है स्टेशन मास्टर को। फर्ज किया 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक ट्रेन अप में डाउन में जा रही है, उनका क्रॉस ना करना है, या एक ट्रेन स्लो है और एक ट्रेन जो है तेज है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों की स्पीड में फर्क है। अब 2 ट्रेनें जा रही हैं डाउन डायरेक्शन में,
स्टेशन के बाद एक एक्सप्रेस से और एक पैसेंजर उरागा से ट्रेनें आ रही हैं। अब उस सूरत में जस्ट टू स्पेयर द टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, स्टेशन मास्टर को ये पता होना चाहिए कि मैंने किस ट्रेन को रोक कर पहले चले, उसको पता कौन देते हैं? कंट्रोल ऑफिस। कंट्रोल ऑफिस के पास एक ग्राफ होता है, वो जो ग्राफ है उस ग्राफ पर तमाम गाड़ियों की बात होते हैं। ग्राफ आपने देखा होगा, आप सब इंजीनियर हैं, उस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है और उस एक्सिस में ट्रेनों के पाथ बने होते हैं। एक तरफ उनका टाइम होता है और उस टाइम के साथ मूव करते हैं, एक तरफ टाइम भी होता है 24 आवर और एक उनके मूव पाथ होते हैं। उस पाथ पर ट्रेन को जाना होता है और दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेकंड कंट्रोलर। सेकंड कंट्रोलर ये बताते हैं सेकंड मास्टर को, भाई ये दो गाड़ियां आ रही हैं, ये आपके स्टेशन पर इन दो का क्रॉस होगा, या फलान ट्रेन को आपने फलान पर प्रेसेस देनी है, या फलान ट्रेन को आपने रोकना है क्योंकि हमें ये इतला मिली है कि उसका जो एक्सिस बॉक्स से घूम रहा है, इतला देने वाला कौन है? हर वो रेलवे एम्प्लाई जो ट्रैक के साथ नथी है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो जाती हुई ट्रेन को क्लोजली देखे और अगर कोई चीज एकदार में नजर आ रही है वो बताए। तो सेकंड कंट्रोलर इज द पर्सन, स्टेशन मास्टर कंट्रोल द ट्रेन इन द लिमिट्स ऑफ स्टेशन। Guard and driver, they control the train in the barak section and they take due care of the gateman. But the overall running of train from one section of the division to other section, that is controlled by the second controller. Movement supervised every bit 24 hours 7 days. Recomposition, block rakes, 10 past few things. Recomposition मैंने बताया आपको कि जितनी भी ट्रेन चल रही है इस वक्त तो पाकिस्तान रेलवे में 13 एक्सप्रेस ट्रेन है, आप यहाँ पर 19 मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, इंटरसिटी ट्रेन है 13, यहाँ दिए हुए जी मेल एक्सप्रेस ट्रेन 16 is equal to 38, 19 38 यानी 19 अप में 19 डाउन में। इंटरसिटी ट्रेन है 13, पैसेंजर 7 हैं, मिक्स्ड 1 ट्रेन है और शेंटिंग ट्रेन है 2, तो कुल 42 ट्रेन चल रही हैं जो फ्रेट के अलावा है। आप इन ट्रेनों को सुपरवाइज होते हैं, इनके लिए रेक लिंक बनेगी। रेक लिंक का मतलब ये कि बराक रेक का मतलब ये है कि हर ट्रेन के लिए ये बताया गया जी कि ये 5 of 6 डाउन है, इसमें इतने कोचेज एयर कंडीशन है, इतने कोचेज इसमें इकोनॉमी के हैं, एक ब्रेक वान है, एक पावर जनरेशन वान है जो गाड़ी जितनी पावर जनरेट करती है, तो वो मुस्तकिल इसे कहते हैं ब्लॉक रेक। अब उसके बाद ये होते हैं ट्रेन पास। आपने ट्रेन पास बनाए हुए, आपने बाकायदा टाइम टेबल के मुताबिक उनके पास नॉमिनेट किए हुए। मसलन कराची से ट्रेन अगर पिंडी आ रही है तो कराची से अप टू हैदराबाद वो कराची का जो डिवीजन कंट्रोल ऑफिस है वो उस पास को करेगा, लुक आफ्टर करेगा, फिर सकर का, फिर पिंडी का, दौर का, तो उन पास पर काम गाड़ी बचाना वो होता है काम कंट्रोल ऑफिस का। फिर क्रू लिंक होते हैं। क्या ये पॉसिबल है? आप क्या समझते हैं कि एक ड्राइवर जो है वो ट्रेन को फर्ज किया ट्रेन कराची बाउंड है, उसके आप क्या महसूस करते हैं कितने उसके होंगे क्रू होने चाहिए? If a train is required to run from Pindi to Karachi, what do you think? How many drivers or guards they are required to run that train? In your opinion? जी एक ड्राइवर 6 घंटे तक हाँ 8 घंटे के हिसाब से शाबाश, एक ड्राइवर 6 घंटे तक, सिमिलरली एक गार्ड उसकी भी ड्यूटी होती है 6 घंटे तक। आप उसके लिए क्रू लिंक बने, उसके लिए बाकायदा क्रू नॉमिनेटेड है कि ये क्रू जो होगा ये काम करेगा फ्रॉम पिंडी टू लाला मूसा, ये क्रू काम करेगा फ्रॉम लाला मूसा टू लाहौर, ये क्रू काम करेगा फ्रॉम लाहौर टू, लेकिन उसी हिसाब से क्रू
उसी हिसाब आप देखें ना कि ट्रेन को चलाने के लिए रेलवे ने कितनी बड़ी अनुभूति बनाई हुई है। इसलिए मैं बार बार को ये कह रहा हूँ कि आप ये अपने आप से ये वादा कर लें कि आपने बीइंग ऑफिसर और ऑफिसर आपने रेलवे की रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करने हैं। और ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर इंडियन रेलवे जो है वो हर साल उसमें 300-400 किलोमीटर का इजाफा हो जाता है, सॉरी 30-40 किलोमीटर का इजाफा हो जाता है, तो वाई नॉट पाकिस्तान? इंडिया की पॉपुलेशन अरब है, पाकिस्तान 1/4 है, कम से कम हमारा 1/4 तो ऐसा हो। और रेलवे को आप डिस्टेंस में नहीं कर सकते। रेलवे की रिसोर्सेज जो हैं उनको प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। और रेलवे इसके बावजूद भी इतने बड़े हेवी जो स्ट्रक्चर के बावजूद भी रेलवे इज मच चीपर देन रोड। इफ यू आर स्पेंडिंग 1 rupee for a passenger on road for 1 kilometer and 1.5 rupee for 1 ton of cargo by road for 1 kilometer, you spend just 1 rupee by railways. और इसमें तमाम लोडिंग अनलोडिंग हमने कैलकुलेट किए आर्टिस्ट टाइम है, तो रेल चीप होकर भी इतना बड़ा उसका आउटले कैपिटल का, अब उसको हम ज़ाया कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हम लोग जो हैं कुछ भी नहीं कर रहे। तो दूसरी बात ये है कि ये टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो होते रहते हैं। असली चीज़ जिन लोगों ने रेल को चलाए हैं वो आप लोग ऑफिसर हैं, आप लोगों ने, आपने गाइडेंस देनी है, आपने टीम बनानी है। याद रखें कि टीम के बगैर आप कुछ भी नहीं है। आप टीम बनाएं, आप टीम को साथ रखें, और ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है इसको बिल्कुल ख़त्म करें। टीम के हर मेंबर का, आपका टीम का जो मेंबर है वो राइट फ्रॉम गैंगमैन टू इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सब उसको रुकन है। हर एक से खुद में हर आदमी अपने तजर्बे में माला माल है, जो कुछ आपको एक गैंग में बना सकते हैं। कभी ये न समझें आप जब ट्रैक को जाकर चेक कर रही हैं या कहीं जा रही हैं तो आपने वहाँ पर जो लोग हैं वो आपसे लेस वो हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस से कम, दैट कुड बी लेस प्रिविलेज, बट दे आर द बैंक्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप लोगों के पास बैठ जाएं, इनको बुला रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो आपके लिए नॉलेज में बड़ा इजाफा करेंगे। इसलिए आप रेल के रिसोर्स को ये अहद कर लें कि हमने उनको ज़ाया नहीं करने देना। आप बहुत ही कर सकते हैं। तो अब जो क्रू लेन बनाए हैं, जितने गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, जिस जगह उन ड्यूटी खत्म होती है बेहतरीन रनिंग रूम वाले होते हैं, उनके रेस्ट रूम होते हैं जिसे रनिंग रूम कहते हैं। उसके अंदर उनको खानसामा मिलता है, खाना मिलता है, बिस्तर बेहतरीन मिलता है, गर्मी सर्दी के हिसाब से उनका पूरा इक्विपमेंट्स होते हैं, आराम करते हैं। अगरचे हम वी कांट एक्सपेक्ट कि उनका आराम जो है वो सफर में होगा, लेकिन बहरहाल उनको फैसिलिटी मिलती है। फिर जो नेक्स्ट आते हैं उनको जगह दे रहते हैं। तो ये क्रू लेन के वो साइड बाय साइड विद रेक्स फिर आगे जाते हैं। तो इसलिए रेलवे के अंदर सेफ्टी को अचीव करने के लिए कोई भी स्थिति नहीं छोड़ी जिसका हम कह सकें कि ये आपने सेफ्टी के यहाँ पर कंप्रोमाइज किए। अच्छा, ये आपने इस वक्त तक जो एक जहन के अंदर अगर आपको कोई चीज़ आई है तो ये है कि ट्रेन का जो ऑपरेशन है, it's not that difficult, but it is vulnerable to many hazards. अब उस हैजर्ड को हमने ओवरकम करके गाड़ी को चलाने हैं, और जो हैजर्ड को ओवरकम करने के लिए हमने सेफ्टी के लिए सिग्नल भी मुहैया कर दिए हैं, हमने सेफ्टी साइडन भी दे दिए हैं, हमने इंजन भी फिट दे दिए हैं। और खुदा न खास्ता कहीं पर अगर सेफ्टी कंप्रोमाइज हो रही है तो इमीडिएटली हमने वहाँ पर जो स्टैंडर्ड है काम को उसको हमने लोअर कर दिए। अगर एक जगह जो है स्टैंडर्ड 3 लागू से ट्रेन की स्पीड जो है वो स्टेशन के अंदर अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और अगर हम स्टेशन के अंदर सिग्नल को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर सके तो हमने उसका स्पीड जो है वो 60 से कम कर 40 कर दिए। अगर एक जगह सिग्नल नहीं काम कर रहा तो इमीडिएटली हमने उसके लिए काशन ऑर्डर इशू कर दिया या हमने एडवाइस इशू कर दी। अगर रास्ते में काम हो रहा है
तो हमने उसको इन्फॉर्म कर दी थी कि आप ये एडवाइस दे चाहिए काशन ऑर्डर और उसमें काम को देखें। और हमने सिग्नलों को इतना देखा है कि सिग्नल जो हैं आपकी रूट के सही बिहेव नहीं कर सकते। इतना कुछ करने के बाद फिर यह हक बनता है कि जो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे क्या वो ठीक काम कर रहे हैं। उसके लिए किस तरह आप इंश्योर कर रहे हैं कि इतना बड़ा कैपिटल आउटले के बाद और इतनी फैसिलिटी देने के बाद इवन देन व्हाट डू यू थिंक, हाउ वुड यू इंश्योर दैट things are going smoothly and there is no breach of rules or there is no slackness? Inspections. शाबाश। और बिल्कुल ठीक है, ये आपने जो इंस्पेक्शन है मैंडेटरी फ्रॉम स्टेशन मास्टर टू रेलवे चेयरमैन, वो इंस्पेक्शन करते हैं। अब इंस्पेक्शन का क्या है, बीइंग एन ऑफिसर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आपने अपने इंस्टॉलेशन को इंस्पेक्ट करना है। आप टनल पर जाएंगे तो आपने टनल का देखना है कि इसका जो पोर्टल है और या इसके अंदर जो बुकिंग डायमेंशन के लिए जो टनल है उसका कोई वीक तो नहीं है। स्टेशन पर अगर आप DTO हैं, ATO हैं, ऑफिसर हैं, तो आपने वहाँ जाकर देख लूँगा कि स्टेशन पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने जो उनका ड्यूटी है प्रॉपरली अंजाम दे रहे हैं। और मजे की बात ये कि इंस्पेक्शन शुरू होती है फ्रॉम स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर ने अपने स्टेशन के अंदर जो वर्किंग रूल हैं, स्टेशन के जो वर्किंग रूल हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं? दो ही किताबें, एक है जनरल एंड सब्सिडियरी रूल्स और दूसरी है ऑपरेटिंग मैनुअल। इनमें से कुछ रूल उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं कि जी उसमें ये लिखा है कि इस स्टेशन पर क्लास कौन सी है, क्लास A, क्लास B, क्लास C। B क्लास पाकिस्तान रेलवे में 99% जो है स्टेशन B क्लास है। A क्लास में सिंपली आप हॉर्न देते हैं या एक आध सिग्नल होते हैं, बाकी नहीं होते। B क्लास स्टेशन है तो इसमें सिग्नल कहाँ कहते हैं, आउटर कहाँ पर है, फादर कहाँ पर है, लाइनें कितनी हैं, ट्रैफिक यार्ड में कितनी लाइनें हैं, यहाँ पर स्टेशन के जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो कितने हैं, यहाँ इस स्टेशन में बाएं तरफ स्टेशन कौन सा है, दाएं तरफ कौन सा है और सेकंड ग्रेड क्या है, ये पूरी आपको वर्किंग रूल में उसकी मिल जाएगी, बाकी मिल जाएगी। आप उस स्टेशन क्या करना है, उसके पास अगर नॉन इंटरलॉक स्टेशन है तो उसने पॉइंट्स की इंस्पेक्शन करनी है, अमले की हाजिरी देनी है और वो हाजिरी उसने कम अज कम हफ्ते में 2 नाइट इंस्पेक्ट करनी है। बाकी इंस्पेक्शन कोई भी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी इंस्पेक्शन उसकी 6 होती है। उस जगह लेवल वो केबल को जाते हैं, केबल में जाकर न सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं बल्कि वो उन लोगों का जो नॉलेज है वो टेस्ट भी करते हैं कि फर्स्ट किया आपने ट्रेन आ रही है और नहीं रुक रही, उसको रोकने के लिए आपने क्या करना है, उसका आपने इशारा किस तरह देने हैं, आपने स्टेशनों किस तरह इंफॉर्म करने है सारा। उसके बाद लेवल आ गया ऑफिसर का, असिस्टेंट ऑफिसर से लेकर उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसमें इंस्पेक्शन स्टेशन की भी होती हैं और वो स्टेशन की इंस्पेक्शन जो होती है महीने में 6 के अलावा उसमें नाइट इंस्पेक्शन करनी होती है और कम से कम 3 इंस्पेक्शन इसकी जिन्हें कहते हैं सरप्राइज नाइट इंस्पेक्शन। वो सरप्राइज पकड़ना होता है कि ये आदमी जो है यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। सेकंड कंट्रोलर जो है वो रात को अचानक किसी टाइम पर, खास तौर पर जब लोगों को बहुत नींद आ रही हो, जिस तरह यहाँ कुछ नींद आ रही है, तो वो चेक करते कंट्रोलर, हेलो बहाली स्टेशन, कोटा स्टेशन, क्या नाम है आपका, कौन सी ट्रेन अभी गई है, आपका जो स्टेशन रजिस्टर है उसमें आज कितनी यार थी, अच्छा मेरा तो मैसेज रिसीव कर लिया, मुझे सर नंबर दें आप ना, अपना मुझे प्राइवेट नंबर दें ताकि मैं यहाँ लिखूँ और कल को चेक करके बताऊंगा जी कि ये हुई है। टाइम क्या हुई, अचानक वाच चेक कर देते हैं। इस तरह आप DS के लेवल पर जाएं। DS तो अगर आप ये कहें कि रेलवे इज द नेक्स्ट नेम ऑफ इंस्पेक्शन, तो ये बजान होगा इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, क्योंकि ये चीजें
जैसे आप लोगों को नॉलेज आप कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस। यार्ड के इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है, उसमें 2 रजिस्टर बड़े जरूरी हैं। एक होता है वैगन ट्रांसफर रजिस्टर और एक होता है वैगन एक्सचेंज रजिस्टर। वो चेक करते हैं कि यार्ड के अंदर एक फ्रेट ट्रेन को, एक गुड्स ट्रेन के ऑपरेशन को ट्रिगर करने के लिए गुड्स करने क्या चाहिए। उस बताते हैं कि जब वैगन आई तो उस वैगन को अनलोड करने के लिए आपने कितनी जल्दी प्रेस की है, नंबर 1। ये आ गया वैगन एक्सचेंज रजिस्टर। फिर प्रेस करने के बाद क्या वो गिवन टाइम में, गिवन टाइम होता है फ्रॉम 6 आवर मॉर्निंग टू 6 आवर नाइट, इसमें वो अनलोड हुई कि नहीं, अगर नहीं तो रीजन क्या है। इसके बाद डीएस के पास होती है ट्रॉली, वो एक तो अपने सैलून में इंस्पेक्शन करता है और एक ट्रॉली में बैठकर। सैलून के बारे में लोग हमेशा जब रेलवे के बारे में बात करते हैं तो उनको सब सैलून तो बड़े सैलून होते हैं। हालांकि सैलून जो है उसमें सॉय इसके कि आपको उन स्टेशन पर जाना पड़ता है जिन स्टेशन पर कोई रेस्ट हाउस नहीं होता, कोई रेस्ट रूम नहीं होता। आपके पास वह एक फैसिलिटी होती है, वो उसको एंजॉय करके आप रहकर आप उस स्टेशन को फुली आप उसको करते हैं, ये चेक करते हैं। बात सर्टन हुकूमतें आई थी तो उन्होंने कहा था जी कि इन्हें ख़त्म कर दो। जब सैलून की फैसिलिटी ख़त्म की तो रेलवे की वर्किंग के मैयार बहुत गिर गया। वो इसलिए कि अफसरों के पास या उन लोगों के पास जिन्होंने इंस्पेक्शन करनी थी उनके पास कोई मीन्स थे ही नहीं कि वो प्रॉपर्ली डिटेल के साथ किसी को इंस्पेक्ट कर सकें। सबसे अहम इंस्पेक्शन होती है फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर FGIR की। इस इंस्पेक्शन में जनरल मैनेजर और तमाम जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, जिसमें COPS हो गया, CCM हो गया, चीफ मैनेजर हो गया, और चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, चीफ सिविल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ये सब आते हैं। और वो उन्होंने हर साल में 2 दफ़ा उन्होंने सेक्शन को बांटा होता है और उनका ये होता है कि 1 साल के अंदर अंदर तमाम रेलवे की इंस्पेक्शन होती है, वो सर्टिफिकेट होते हैं। और उस इंस्पेक्शन में जो चीज़ें आती हैं फिर नेक्स्ट इंस्पेक्शन में उनका बाकायदा हिसाब होता है कि जो हमने इंस्पेक्शन की थी वो किस हद तक उस पर अमल हुआ। तो ये आ गया। अच्छा, एवरी फील्ड फंक्शनरी वॉच रन ऑन ट्रेन 8 एक्चुअली पेपर लिया आपने। इंडियन रेलवे एम्प्लॉइंग सेंसर इंफ्रारेड थर्मामीटर्स सेंसिंग एक्सल बॉक्सेस। ये एक बड़ी डिफेक्ट होता है, वो होता है हार्ट एक्सल होना। एक गाड़ी जो होता है जब गाड़ी चलाते हैं तो वो 3 मरले से गुजरती है। फर्स्ट मरला होता है उसका वॉशिंग लाइन में सफाई का, सेकंड मरला होता है उसका एग्जामिनेशन बाय द ट्रेन एग्जामिनर। वो ट्रेन एग्जामिन करते हैं कि गाड़ी जो है फिट है, बात कर रहा हूँ उसकी गुड्स व्हीकल की भी और उसकी भी पैसेंजर व्हीकल की। और उसमें अगर उसने प्रॉपरली उसको एक्सल को पैक नहीं किया तो वो रास्ते में ओवर रन से वो आउट हो सकते हैं, और आउट होकर वो दे ब्रेक डाउन एंड दे मेक ट्रांसडेडमेंट। तो चूंकि इसको नॉर्मली देखा नहीं जाता तो इसमें शायद पाकिस्तान रेलवे भी कर रहे हैं, लेकिन इनके रेलवे में उन्होंने एक सेंसर किए हैं जो न सिर्फ इंजन के इसके वैगन के बल्कि ट्रैक के भी, ओरिजिन के भी, अगर कोई मटेरियल में कोई क्रैक है या अंदर कोई चीज ऐसी है जो डिस्टर्ब कर रही है तो उसको वो नोट कर देते हैं। वही आ गया। जी सर, ये सेंट्रलाइज कंट्रोल में क्या है? कहाँ है सेंट्रलाइज कंट्रोल? पढ़ लिया आपने STC वाला। सेंट्रलाइज कंट्रोल तो सिग्नल में आ गया था ना कि जिसमें आपने ट्रैक सर्किट करने के बाद अपने ऑफिस से, अपने केबल से आप एक ट्रैक को फिजिकल जाने के बजाय आप उसको कंट्रोल कर लें इससे आगे से। उसमें जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है वो सिर्फ कराची में 2 स्टेशन हैं, मदीर और
दूसरा जिसका नाम भूल गया हूँ, तो वहाँ पर जो ट्रेन चल रही हैं, they are being controlled by the station master, by the operator who is sitting in an office, and in an office he controls the switches, the points and the signals of that section. It is roundabout autograph system. अच्छा, ये आपने मैं पहले भी कहा है कि स्टार्ट जर्नी और एंड जर्नी में जो भी एक ट्रेन की बीट है, उस बीट को से जाने से पहले जितने भी उसके रोलिंग स्टॉक है, ये इंजन है, कोचेस हैं, तो आप चेक देयर एग्जामिन, और वर्कशॉप में उनके लिए टाइम मुकर्रर होता है। आप अगर आप कोच देखें, किसी कोच को पढ़ लें, किसी वैगन को देखें, तो उसमें ये लिखा होता है रिटर्न मई या दिसंबर 2021 कि हमने इसको चेक कर लिया, इस वैगन को अभी ये फिट है, लेकिन इसको आपने वर्कशॉप कर ली, लेकिन इसको आपने इस वर्कशॉप में 6 माह के बाद दोबारा भेजने ताकि आप उसको चेक करें। तो इस तरह जो होता है कोच, जो पैसेंजर कोच होता है, उसमें ये लिखा होता है कि इस कोच के हमने पूरी तरह से देख लिया वर्कशॉप में, आप इसके बाद इसकी मेंटेनेंस के लिए इसमें इतने अर्से के बाद आ रहे हैं, ये वर्कशॉप टेस्ट होते हैं। बाकी जब गाड़ी एक जाने के लिए तैयार होती है, तो उसके लिए उसको 4 मरने से गुजरना पड़ता है। इंजन मैंने पहले बताया, जब वो शेड सेट तरह चेक आता है, जो वैगनें हैं या कोचेज हैं, उनको अराइवल पर दे आर सेंट टू वॉशिंग लाइन्स, वॉशिंग में साफ होती हैं, देन बिफोर डिपार्चर दे आर ब्रॉट टू ट्रेन एग्जामिनिंग स्टाफ, वो उनको एग्जामिन करते हैं, ये साफ कहते हैं, वो एग्जामिन करने के बाद ये देखते हैं कि आया ये फिट है कि नहीं। थर्ड मंथ होता है गार्ड का, हर गार्ड जो होते हैं, हर ट्रेन जो होती है, उसमें 3 गार्ड होते हैं। एक होते हैं इंचार्ज गार्ड, वो ब्रेक वन में होते हैं। व्हाट इज ब्रेक वन? ब्रेक वन इज द व्हीकल पोजेस्ड बाय द गार्ड। ब्रेक वन के 2 ऐसे होते हैं, एक में गार्ड बैठते हैं और उसी ब्रेक वन में उसके पास वो ब्रेक की भी होती है, एक हैंडल होते हैं जिसके लिए वो ड्राइवर से कम्युनिकेट करते हैं, और जो दूसरा पार्ट होते हैं उसमें कार्गो हो जाते हैं। तीसरा होता है कंडक्टर गार्ड। जो कंडक्टर गार्ड होते हैं वो ट्रेन के अंदर मुसाफिरों की जो फैसिलिटीज हैं, उनके पास टिकट है कि नहीं है, बाथरूम की टूटियां काम कर रही हैं, पंखे काम कर रहे हैं, लाइटें काम कर रही हैं, फैन है, जो पावर जनरेशन कोच है उससे पावर मिल रही है, और ट्रेन जो है उसको, तो ये चीजें होती हैं ट्रेन के अंदर। अच्छा, ये एग्जामिन करने के बाद फिर आप गाड़ी को रवाना करते हैं। अब गाड़ी को रवाना करने से पहले जो स्टेशन मास्टर है वो ज़ाहिर बात है अपने स्टेशन को देखकर उनको ले लेते, अलाउ कर लेते। अच्छा, अगर एक ड्राइवर डिस्प्यूट हो जाए ट्रेन मेंटेनेंस स्टाफ के साथ, तो फिर उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए लोको फोरमैन जो उनके चार्ज होते हैं वो आ जाते हैं। कोचेस वॉश बिफोर डिस्पैच। स्टाफ को आप अलर्ट और एजाइल करने के लिए आप क्या एक्शन देते हैं? ST13 लो टिकट रेलवे स्टैटिस्टिक फाउंडेशन, गार्ड और ड्राइवर जिन्होंने एक बीट पर जाना होता है। अब ऑब्वियसली जिस वक्त तो आपने एक ट्रेन को चलाना है और जो इतनी सेफ्टी का तकाजा करती है, तो ऑब्वियसली जो लोग उसको वर्क कर रहे हैं उनके भी जो मेंटल अलर्टनेस है, जो फिजिकल फिटनेस है, दे शुड बी अप टू डेट। तो उसके लिए गार्ड का जर्नल होता है जिसमें वो रास्ते में हर किस्म का जो डिफेक्ट है वो नोट करते हैं, और जो लोड टिकट है वो गार्ड ड्राइवर के पास होते हैं जिसमें वो अपने तौर पर इंजन के या गार्ड की, ड्राइवर गार्ड को अंडर चेक रखते हैं और गार्ड ड्राइवर को अंडर चेक रखते हैं और स्टेशन मास्टर दोनों को अंडर चेक रखते हैं। कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट, अब आपने
when you are working the train, it is a skill. और इस स्किल को मेंटेन करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए क्या होना चाहिए? आपकी एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपका कोर्सेज होने चाहिए। तो उसके लिए जो वार्डन हमारा ट्रेनिंग स्कूल है या ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है जहाँ पर आप होकर आए हैं, अब उसमें ये मुख्तलिफ इनके नाम है कोर्सेज के। ये स्टेशन मास्टरों का के है P1, P2, P3, ये कोर्सेज प्रमोशन के हैं। एक गार्ड को ग्रेड 1 से, ग्रेड 2 से, ग्रेड 3 से जो प्रमोशन मिलेगी वो इन कोर्सेज के बाद मिलेगी। T12 जो होते हैं ये रिफ्रेशर कोर्स होते हैं कि आपने अपने नॉलेज को रिफ्रेश करना है या अगर ट्रेन के अंदर कोई नई चीज़ आई है आपने उसको अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले बताया है कि पहले ये वैगन थी 4 व्हीलर, अब ये बोगी कोच आ गई है। पहले लाइन थी इस पर टेलीग्राफी पर, अब इस जगह ये मुख्तलिफ VHF रेडियो आ गए। पहले थी टेलीफोन का इस्तेमाल बिल्कुल मना था। आपको पता भी है कि मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ स्टेशन मास्टर से, हमारा कम्युनिकेशन फेल हो गए। अच्छा, फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन में जब दो स्टेशन के दरमियान फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए उस सूरत में एक इशू करते हैं। OP कौन सी है? 129, 128। डाउन ट्रेन के लिए 129, 128 और अप ट्रेन के लिए 129। मीन के वो देते हैं ट्रेन को जी कि आप ये OP लेकर जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे स्टेशन के साथ गाड़ी कितनी है, रास्ते में क्या हिसाब किताब है, लिहाजा आप बिल्कुल डेड स्टॉप पर जाएंगे। इस तरह जो दूसरा है स्टेशन मास्टर, वो उसको उस वक्त तक इशू नहीं करेगा जब तक ये ट्रेन नहीं पहुंच जाएगी। अब वो चीज़ें खत्म हो गई। उस वक्त तो ये सामने एक प्रपोजल आई थी कि टेलीफोन आ गए हैं तो टेलीफोन इस्तेमाल करने, तो वो बता दें जी कि अगर कम्युनिकेशन फेल होगी है ट्रेन की, वो ब्लॉक सिस्टम काम नहीं कर रहा, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे, तो यू कैन ऑलवेज यूज टेलीफोन। उन्होंने कहा नहीं, टेलीफोन कैन बी इंटरसेप्टेड। आप फोन तो बात करें मार सकते, क्या पता है वो ऐसे वही है ये कोई और है या किसी ने इंटरसेप्ट कर लिए। तो उसके लिए फिर ये जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं उसमें आप मोबाइल भी आ गए, लेकिन उन्होंने मोबाइल को भी, टेलीफोन को, जो मैंने देखा नहीं है मैंने सुना है कि उसका उन्होंने सिलाई लगाई हुई है, उसको स्पेशल उन्होंने स्ट्रक्चर दिए हुए जिसमें जो आपका सेल फोन है या आपके पास जो ट्रांसमीटर है उसको कोई और नहीं कर सकता। वो चीज़ें आ गई। तो इन चीज़ों को से अपडेट होने के लिए यू नीड टू गो टू वार्डन एंड टू गेट न्यू इंफॉर्मेशन। उसके लिए यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड टू वार्डन कोर्सेज आफ्टर एवरी 4 years. But if for certain reason a transportation staff is unable to display to warden, then he will have to appear before the officers. DTO के पास आएगा गार्ड, तो DTO उसकी लेगा टेस्ट लेगा और वो टेस्ट में अगर पास हो गया तो वो 1 साल के लिए वैलिड है। उस 1 साल के बाद he will have to go to warden and undergo the course. अच्छा, ट्रेनिंग होगी, रिफ्रेश कोर्सेज होगी और प्रमोशन कोर्सेज होगी। इसके लिए आप अपना कर सकते हैं। अच्छा, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, अब ये बात याद रखें कि ट्रेन जो है उसमें हर आदमी जिस पोस्ट पर भी है वो रिस्पॉन्स पहले पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक गेटमैन, उस गेटमैन की तो बजाय उसकी जो पोस्ट है बड़ी होती है, लो पेड होती है, लेकिन उस पर भी हजारों लोगों की जिंदगी का इंसार होता है। उसने इंश्योर करना होता है एक ट्रेन का पैसेज। तो लिहाजा 5 महीने या गार्ड है, तो उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो फिजिकल फिटनेस, उसके लिए तो आपने बाकायदा जो हर डिवीजन के अंदर एक हॉस्पिटल है उसका इंचार्ज होता है डिवीजन मेडिकल ऑफिसर। तो डिवीजन मेडिकल ऑफिसर जितने भी ऑपरेटिंग स्टाफ है इसमें ऑफिस भी शामिल है, लेकिन ऑफिसर जाते नहीं है। तो बाकी जिन बंदों ने ट्रेन करना होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द DO एंड गेट द फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आफ्टर स्पेसिफाइड 6 महीने के बाद। और जो नजर है इसकी चेकिंग हर 3 माह के बाद होती है। नजर की चेकिंग, आई साइट की चेकिंग न सिर्फ DMO करते हैं बल्कि आप
की स्टाफ की चेकिंग स्टेशन मास्टर भी करता है। उसके लिए स्टेशन पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, विजन टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, विजन टेस्टिंग पोस्ट। आमतौर पर जो विजन टेस्टिंग पोस्ट होती है वो आउटर होते हैं, तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक जगह मुतय्यन होती है, वहां आप खड़े होते हैं। ऐसे मिजाज जाओ, जो खड़े हो जाओ, देखो वो सामने जो सिग्नल नजर आ रहे हैं, आउटर आप नजर आ रहे हैं, अगर आ रहा है तो उसकी क्या है, आर्म किसी, तो वो इस तरह वो अगर बता दे जी कि अभी इसकी ये आर्म इसकी डाउन है या अप है या हेड है या इसका ये पोस्टर है, तो ठीक है। अदरवाइज ये सेंड टू द डीएमओ। वो बात तो उस तरह जिस तरह एक डॉक्टर वो जंग में लोगों की भर्ती कर रहे थे, जब डॉक्टर जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, एक आदमी जो है उसको डॉक्टर के पास लेकर के फौजी पकड़ कर, ये आदमी जो है इसकी फिट दिखाई दे तो चेक कर लें उसको। तो उस डॉक्टर ने पूछा जी कि ये सामने जो बोर्ड है इस पर क्या लिखे? कहते क्या लिखे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहते बोर्ड पर, कहते कौन सा बोर्ड? उसने कहा जी बोर्ड जो है जो सामने दीवार पर है। कहते कौन सी दीवार पर? तो डॉक्टर ने कहा कि ये आदमी जो है ये फिट नहीं है, तो इसको आप बटनी करें, खराब हो जाएगा। शाम को डॉक्टर गया फिल्म देखने के लिए सिनेमा में, तो वो बंदा साथ बैठा था। तो उस बंदे को पहले पता लगा कि डॉक्टर मेरे पास आ बैठे। वो उस कब्र से डॉक्टर पूछते, वो डॉक्टर से कह रहा है ये बस कहाँ जा रही है? तो मतलब ये है कि अब इस किस्म के वो सिनेमा हाल को कि बस से जा रही है, ताकि डॉक्टर कहना कि आदमी समझ लेगा बात। तो मतलब क्या है कि ये है कि वीटीओ और वीटीपी जो है उसमें वो पूछते थी कि आप सेकंड का एस्पेक्ट बताएं। रेलवे रनिंग रूम अपने पढ़ लिया, रेलवे कॉलोनीज हैं, हर रेलवे में बनी हुई हैं, और ख्वाहिश ये होती है कि इन कॉलोनी को वेल मेंटेन्ड हो, ताकि जो स्टाफ काम करने के लिए आए, वो गार्ड है, जो लोग हैं, वो सी अपने घरों में रहें। सेफ्टी सेमिनार, सेफ्टी बुलेटिन। सेफ्टी सेमिनार जो है वो ऑफिसर व जिस ग्रेड के, जिस ब्रांच के भी हों, इंजीनियर हों या ट्रैफिक के हों, वो बाकायदा हफ्ते अशरे में अपने जो स्टाफ है उसको बनाकर सेमिनार में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इरादे भी। और प्लस सेफ्टी बुलेटिन, हेडक्वार्टर ऑफिस जो है वो महीने में एक बार एक अखबार इशू करते हैं जिसे बुलेटिन कहते हैं। उस बुलेटिन में ये लिखा होता है कि इस महीने में तमाम स्टाफ के लिए ये हिदायत है कि उन्होंने आउटर और एडवांस स्टार्टर के एस्पेक्ट को चेक करने की किस तरह काम कर रहे हैं। इस महीने में हर एक ने पैराफ्लूइड को चेक करना है। इस महीने में हर एक ने ये देखना कि क्या है स्टेशन मास्टर जो हैं वो रनिंग ट्रेन को सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये सेफ्टी बुलेटिन इश्यू होते हैं। वर्किंग टाइम टेबल, पब्लिक टाइम टेबल, मैंने कहा है कि ट्रेन ऑपरेशन एक्ट में ये जो दो टाइम टेबल हैं, एक आ गया ये वर्किंग टाइम टेबल और एक पब्लिक टाइम टेबल, टाइम एंड फेयर टेबल। इसको अगर आप पढ़ने बड़े आसान है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी कभी गौर कर लें सराहने के नीचे हो, तो उसमें ये होगा कि आपको ट्रेन की सेफ्टी के बारे में, इसकी मूवमेंट के बारे में आपको बहुत अच्छे इसके बारे में नॉलेज रहेगा। ये आप इसको देख लें जी। आज के लिए काफी है। आज के लिए काफी है। बहुत